We won't say this as a debut, which we just heard that there were more songs in the past. How is this hidden passion not being exposed so far? It's always been my passion, and since many years, and everybody is aware about it. All the people who know me, but I actually never gave it that much of a push because I'm doing a lot of things. I'm doing events in a big way, and plus managing Salman and all. There's a lot of work, so I never get the time. But now I've made it a resolution that this year I'm going to record as many songs as I can. Excellent. Yeah. So I think this would be the first single if we The first say single, so. yes, yes. Which is with Desi Datta and talking about the melody, the direction, the lyrics. What do you have to say about that when you finally see your song on the street? I'm loving it. When I first was called by Shabir to record this, I was really impressed with the track, and I knew it was a sure shot. And I impressed Yasin Bhai because he's the one who really guided me because I was coming on the mic after a long time. I had sung for a film before this, which I recorded for Vishal Mishra. But since then, I've not come in front of the mic, so I think he guided me a lot. But I'm loving it. I love the entire experience. And thank you, Desi Music, for this lovely opportunity. Lovely opportunity. We hope to hear and get more songs with Absolutely, Datta and absolutely. Bhai. You will hear a lot of songs this year. A lot of songs. Anushka, your duet is with Jodie and both of you sang Hello. so beautiful. It sounded so good. There's a very good texture for now in your voice. What do you have to say for the When I first heard the song, I just told Shabir sir. Sir, mic. So when I first heard the song, I just told Shabir sir that this is a certified banger. So and I gave my best, and as did Jody sir and Biglab Bhaiya. So now I just leave it up to the hands of Mahadev, Harar Mahadev, to make this song a blockbuster hit. Thank you so much. When we saw you on screen, we heard the Bacha has a younger brother. What do you have to say about the whole project? Your whole experience about it? So I was shooting some other thing, and Yash Bhai spotted me over there, and he was like, "Oh, you did the Lamborghini rap in that." First, I heard the song from Shabir Bhai, and Shabir Bhai is our backbone when it comes to music. Absolutely. And then they sent me to the shoot of Lamborghini, and then I met Ramji Bhaji over there, and it was like he said, he's a genius.
he makes things happen, you know. So it was a great experience. I loved it. Yes. You'll see more of it coming. And yeah, I'm sure this must be like one fun trip, and you both look lovely together. Tell us some moments in Dubai while shooting the song, and of course, we know Ramji is all about cars and beautiful locations and making the video look so chic. What do you have to say about that? Um, I like when we were shooting together, it was definitely a treat. I kept telling him actually, you know, the way you shoot and you are like one of the most creative persons, you know, person I've met and I've shot with. So he is a perfectionist and he just knows, you know, how to put like a puzzle together. I really want to thank him. Definitely the whole team. The singers, they are so good. हम लोग पता है आज तक के ये गाना गुनगुना रहे हैं. It's like वो होता है ना, गाना बैठ जाता है. It's like that song. So Desi Tadka and everybody who has given this opportunity to me, and especially Rohan, because he got me into this song. So I'm very thankful, and it was an amazing experience. I hope मुझे और मौका मिले राम जी और आप सबके साथ काम करने का. Rohan, of course, needless to say that you look amazing and passionate. Thank you so much. And I must say, chemistry with Ramji is so beautiful. You all have done so many songs together, and you all have been super great. And we wish you all the luck for this one also. Tell us the whole journey, right So from the time basically- you heard this song and Well, to begin with, whenever he calls me, I trust him blindly actually. I know कि कुछ भी होगा वो बेस्ट चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा. ये हमारा आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्होंने भी कुछ 150-200 गाने शूट किए, बट एक एक्टर को उन्होंने रिपीट नहीं करा है. तो ही टोल्ड मी कि यू आर द ओनली वन जिसके मैंने 10 गाने शूट करे हैं. तो मैंने तो गाना भी नहीं सुनता हूँ. जब ये कॉल करते हैं तो मतलब आई तो ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम. मैं गाना भी नहीं सुनता हूँ, बट गाना तो इतना अच्छा था, वो तो अलग बात है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया. इतना अच्छा गाना बन के आया थैंक्स टू देसी म्यूजिक तड़का. और तो मतलब इतना ट्रस्ट है कि मुझे पता है कि मतलब इनका कॉल आ रहा है तो सब चीज़ अच्छी होने वाली है. so सारी अच्छी कास्ट का एक्सपीरियंस आपने Ramji के साथ किया है. पहला भी मेरा जो म्यूजिक एल्बम था इन्हीं के साथ था, और आज मैंने 60 या 70 कुछ कर लिए हैं, वो भी इन्हीं के साथ ही है. और इनका भी कम बैक था, आई थिंक 1 साल के बाद वापसी हो रही थी, तो इन्होंने मुझे याद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी मोटो. देसी तड़का के लिए क्या कहना है? एक्चुअली न्यू लेबल है और बहुत जल्दी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं. और जिस तरह से मतलब सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और इतना बड़ा तरीके से गाने को लॉन्च किया, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड. और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इतना इंतजाम इतना अच्छा होगा. तो आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला. थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, और आगे भी हम जरूर काम करेंगे दोबारा से. Ramji, what do you have to say again? You see, lavish luxury cars and high-rise buildings and skyscrapers. बहुत प्यारा वीडियो है, और देसी तड़का के साथ आपका एसोसिएशन रहा इस गाने में, क्या कहेंगे? I want to thank yes sir, ये मेरा पहला एसोसिएशन है देसी तड़का म्यूजिक के साथ, and I'm so happy and I would like to thank him and his entire team. He's a beautiful soul. ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इनके साथ और अच्छे से थोड़ा जुड़ा हूँ. तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यस सर, एंड इन्होंने मुझे शबीर भाई के साथ बहुत टाइम बाद में और शबीर भाई जुड़े हैं अपने काम को लेकर. सो एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग. एंड जब एक अच्छा ऑडियो आपके पास होता है, व्हेन यू हैव सच गुड सिंगर्स, जॉडी भाई, अनुष्का, बिग लव, पाजी हमारे, सो व्हेन यू हैव अ गुड ऑडियो तो आपका अपने आप मन करता है कि उसके ऊपर यार एक अच्छा विजुअल बनाए, तो आपका विजन और बड़ा हो जाता है. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियो टीम, शबीर भाई स्पेशली, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है. एंड जब लैम्बोर्गिनी माइंड में आया, यू नो इट, एंड जो लाइन्स थी इट एब्सोल्युटली स्टेटेड कि ये दुबई में ही शूट होना चाहिए, डाउनटाउन का जिक्र किया था लिरिक्स में. एंड माई फर्स्ट कॉल वॉज डायरेक्टली ही, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि इन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया, ना पूछा क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, कब करोगे. ही सेड रामजी दिस इज योर बेबी. शबीर भाई पे पूरा ट्रस्ट किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत ऑडियो बनाया, और जब खूबसूरत ऑडियो मेरे पास था, फ्रीडम था, so you know I absolutely went by calling Rohan कि भाई I want to do this song with you, and I'm so thankful to Rohan. उन्होंने मुझे रियाज से मिलाया, and I got this beautiful cast, and even love at last minute, मेरे ख्याल से वीडियो के 2 दिन पहले सर का मुझे फोन आया, यार he is a good performer, मेरे को जस्ट उन्होंने भेजा वाला let's do it. So we had him on board, and Rohan told me, you know यार अगर you know he'll be there in the video, it'll add more up. तो उन तीनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वीडियो में,
And I would like to thank Rohan, Riya, Begla, Shabir Bhai, yes sir, and I Thank you think it's so come up fabulously. And my entire team who either है नहीं, so Rahul Paji, John Paji, and my entire Dubai crew for helping me in this video. And thank you, Parul, for getting us all together for this beautiful day. And thank you everyone for coming today and giving your valuable time and helping us with this beautiful event. हम आपको पूरे थे बहुत अमेजिंग और बहुत जेंसी मेलोडी है, लिरिक्स है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक बना है ये। हमें जब आप बना रहे थे थॉट्स कैसे कुछ इंटरेस्टिंग हर एक रोल गाने के बारे में अच्छा। सबसे पहले तो जब मैंने कुछ गाने बनाए थे सिंगल के लिए, तो मैंने यस जी को सुनाया तो बोले मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो बोला क्या चाह, बोले अरे मेरे आर्टिस्ट तो बहुत टीनेज है और फ्रेश कुछ अलग, जैसे ये देखो ये सुनो। एक दो बार मैं बुलाया सुनाया तो कुछ समझ में नहीं आया। राइट आंसर। तो मैं बोला अच्छा है, तो मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो फिर मैं बोला यार क्या करूँ। और मैं बोला कुछ फ्रेश करते, कुछ नया करते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बाकी जो गाने हैं वो जैसे कुछ गाने जो मैं सुना रहा था रोमांटिक थे, थोड़ा मैच्योर थे, वो टाइप के थे। तो कुछ इनको मतलब अर्बन चाहिए था, कुछ फंक में चाहिए था, कुछ एकदम जैसी टाइप में चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। और फिर एक जो बच्चे के जबान पे, छोटे छोटे बच्चों की जुबान पे, सबको आम जैसे आदमी चले, और एक ऑटो रिक्शा वाला भी गाय लेम्बरगिनी का। तो मैं बोला चलो इस पे करते। तो मैंने काफी गाने बनाए और उसके बाद में फिर मैंने जॉडी भाई को बुलाया, बोला आ जाओ जरा कुछ गाने हैं उसको डब करना। तो जॉडी भाई को बुलाया, पूरा गाना डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उसको पूरा रेडी किया। फिर यस भाई पहुंचे और उन्होंने राम भाई से बात करी, तो फिर ये गाना हुआ। गाना पहले मेल था, फिर मेरे दिमाग में कि यार इसको फीमेल भी करें, क्योंकि मेल फीमेल होगा तो एक होगा। फिर अनुष्का को हमने वो किया, फिर अनुष्का इसने ज्वाइन की। उसके बाद फिर हम बोले कि यार अब ये म्यूजिक वन में कुछ एक होना चाहिए, कुछ है ना, ब्लू स्काई के नीचे आ बनेंगे 16 से सेल्फी खींचे। मैं बोला थोड़ा मेरी बेटी जो है शारिया, वो छोटी ये सब चीजें देखते रहती है, तो ये देखो ऐसा डैडू ऐसा डैडू ऐसा ऐसा। तो मैं उसकी भी बात सुना, मैं बोला अच्छा कुछ करते हैं। तो मैंने ये पूरे चीज को कलेक्ट किया, फिर ये गाना बनाया और उसके बाद में फिर लब आया इसके अंदर, फिर गाना रेडी हुआ। और फिर राम भाई सुने, राम भाई ने कुछ कॉन्सेप्ट किया। तो मैं सोचा नहीं था कि मतलब मैं बोला यार ठीक है गाना बड़ा हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर यश के साथ काम करने का एक ये फायदा है कि ये भाई एकदम फ्रीडम देते हैं कि भाई जो आपको लगे जैसा लगे बस अच्छा करो। बाकी ये कभी नहीं कि लिरिक्स क्या है, म्यूजिक क्या है। एक आजकल गानों में एक जैसे एक ग्रुप होता है ना, एक म्यूजिक सिग्नेचर म्यूजिक डीजे स्नेयर, ये एक सिग्नेचर म्यूजिक वो भी था। तो मैं बोला यार मैं लेकिन कुछ करूँ तो मेरा अपना क्या बचूं। तो इसके अंदर सारी चीज को जहन में रख के गाना बना और गाना बना। उसके बाद राम भाई ने शूट किया और आज गाना देखा तो गाना देख के बहुत अच्छा लगा कि यार कितना अच्छा गाना हो गया। और सारा मेहनत ये पूरी टीम की मेहनत है, सबकी मेहनत है। और जो रोहन और रिया ने पे शूट हुआ बहुत अच्छा इन लोगों ने वो किया, गाने को जस्टिफाई किया है। तो अपनी तरफ से तो हर आदमी बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी दही कोई खट्टी नहीं बोलता, बट हमने कोशिश की है एक अच्छा गाना बना के आप लोग के सामने। अब पब्लिक का प्यार मिलेगा, पूरे ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, आप सब लोग के माध्यम से लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, तो फिर आने वाले नए लोगों को और मौका मिलेगा। फिर आज
यश आया देसी गाने के, कल और 10 लोग आएंगे। आज यश आए, कल और 10 आएंगे कि म्यूजिक कंपनी खोलो यार, ये बनाओ गाने सिंगर। तो हम सबको मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें भी कोई रोहन आए, कोई रिया आए, कोई लव आए, कोई जॉडी आए, कोई लव अनुष्का आए, कोई शफीर अहमद आए, तो हम सबको मौका मिलेगा। तो ये हम सब लोग का को अगर सपोर्ट करेंगे, आप सब लोग सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे, तो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट। और एक जरूरी बात है कि जैसे आपने आज देखा जॉडी पटेल जी को कि यार ये इनका साउंड, इनका गाना, तो ये बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं, ये लव को भी मालूम है या अनुष्का को भी मालूम है कि ये कितना परफेक्ट रियाज, नोट, एक एक वर्ड, इन सबको मेहनत करके जो इन्होंने किया है। और अभी तो ये गाना अभी इनके यश के साथ काफी गाने हम लोग कर रहे हैं, आ रहा है। फिर हंसराज रघुवंशी जी के साथ इनका गाना आ रहा है। कुछ गाना जो फिल्म का आ रहा है, अभी संजय दत्त की अपकमिंग मूवी है जो उसके लिए इन्होंने गाया है। मतलब ये मेरे लिए कम से कम तो 8-10 गाने गाए हैं और सारे कोलैब में सब बड़े बड़े लोगों के साथ गाया है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे लव है, लव और अनुष्का और जॉली, इनकी एक जो है ना टीम बन चुकी है। तो कभी इसमें रघुवंशी मिलेगा आपको, हंसराज रघुवंशी जी मिलेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी, कभी और कोई सिंगर मिलेगा। तो ऐसे कोशिश है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। कैसे आप उनका टैलेंट को स्पॉट किया और देसी तड़का की फिलॉसफी म्यूजिक लेवल क्या है और लैम्बोर्गिनी का जो पूरा एक्सपीरियंस है। लैम्बोर्गिनी के पहले शबीर भाई के पास मैंने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया। यहाँ से हमारी लेवल की स्टार्टिंग हुई। गाना हमने 2025 में रिलीज किया। इसके बाद हम लैम्बोर्गिनी को बना देंगे। बिग लव को मैंने हैप्पी हैप्पी में देखा था और उसका टैलेंट देखा था। जैसे शबीर भाई ने इस गाने को रिकॉर्ड किया, हमें रामजी बाजी के पास देखे थे। तो इस कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी, इसके 2 कैप्टन है शबीर भाई और अमित। शबीर भाई के पास पूरा फ्रीडम था। उन्होंने जॉर्डी भाई को लाया, अनुष्का को लाया। जब शबीर भाई के पास मैं पहली बार गया था तो इन्होंने अनुष्का के कुछ गाने सुना। मैंने इनको पूछा इसकी आवाज़ नहीं था, तो अनुष्का वहाँ पे बैठी थी, पूरी की आवाज़। मुझे लगा ये 15-16 साल की बच्ची लग रही है, इसकी आवाज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती। मैं सरप्राइज हो गया। मैंने शबीर भाई को बोला कुछ भी करके मेरे को इसका गाना, इत्तेफाक से वो गाना लैम्बोर्गिनी हो गया। मतलब मेरे को शबीर भाई ने सरप्राइज किया। जॉर्डी भाई की आवाज़, अनुष्का की आवाज़। और जब बिग लव का मैंने पहली बार हैप्पी हैप्पी में रैप सुना था, मुझे लगा कि ये तो शबीर भाई की आवाज़ लग रही है। लेकिन जब मैं बिग लव को मिला तो मेरे लिए वो सेकंड सरप्राइज। फिर गाना अच्छा बना, फिर रामजी भाई को लेके गया मैं उनके पास। उन्होंने गाने को 2 बार सुना, बहुत सारे गाने सुने, उन्होंने एक ही गाने को रिपीट करवाया। मुझे समझ में आया कि ये गाना फिर रामजी भाई को मैंने पूरा फ्रीडम दिया। आपके पास सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट है उनको लेके आप इस लोकेशन पे गाना शूट करना चाहते हैं कर सकते। गाना कंप्लीट करके आप देखिए, फिर उसके बाद रिलीज करना। रामजी भाई ने परफेक्ट जॉब किया, शबीर भाई ने बेस्ट गाना बना के किया। एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ है और ये देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा लेवल कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी 2025। क्या रहेगी और आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देसी तड़का म्यूजिक एक कॉम्बिनेशन है पूरे रीजनल लैंग्वेजेस का। हम पूरे इंडिया से, जैसे रियलिटी शोज होते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, तो जो न्यू कमर्स का टैलेंट है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा आगे चलकर। और बीच में हम इस तरह से बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बड़े कैटलॉग करेंगे। थैंक यू सो मच। Hi guys, good to see you and congratulations. पारसियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी का अभिषेक किया था सेकंड टाइम और फरवरी इसी मंथ में और सभी के बीच में नहीं, और फरवरी में आपने गाना लेकर आया तो कहीं ना कहीं मैंने एक रिव्यू भी दिया, आप उन्हीं का गाना लाकर तो वो आज सभी के बीच में नहीं है। गुड गाइस से कहीं ना कहीं ठीक है, सहयोग में ऐसा हो गया। अगर बात करो आपसे, गाना बहुत रोमांटिक गाने जा रहा, बहुत अच्छा गया। अगर आप लोगों से बात करो, आप सब यहाँ पे बैठे हुए होंगे, कोई आपकी लाइफ का ऐसा कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कार में कोई रोमांस वाला मूड हुआ, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गए या कार में कभी किसी को प्रपोज कर, कोई कार वाला रोमांटिक मोमेंट आप लोगों के साथ है जो आप शेयर करना चाहेंगे?
राम जी बताइए। राम जी आपकी अभी वाइफ यहाँ नहीं है, बता सकते हो। इसमें शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, मतलब पिछले का शेयर करूंगा तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। सर इंडायरेक्टली थोड़ा कुछ बताना चाहिए, कोई ऐसी डेट पे गए, कोई मौसम, मेरा नाम नहीं बता सकते, कोई जर्नी आपके साथ हो तो याद आती हो, जब कार की बात होती है, रोहन भाई आप बता सकते हैं? आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, और जब अच्छा वेदर होता है, अच्छे गाने लगा के सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, तो आई थिंक ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ ही आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। और इवन ये गाड़ी जब हम चला रहे थे, मैं जब दुबई में गाड़ी चला रहा था तब भी बहुत अच्छा वेदर था, सब बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी बहुत मजा आता था। रिया के साथ रोमांटिक ड्राइव पर हम निकल गए थे, उसके बाद थोड़ा सा इट इज अ गुड फीलिंग। ऐसे कंटेंट थोड़ा बहुत रैपर भाई की तरफ से ज्यादा मिलती है, कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव होता है हमेशा। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो जिन्होंने लिखा है तो उन्होंने कभी किसी को कहा होगा कि रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे को उठाने। यार रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के आई नहीं है। बहुत रियाज रेड ड्रेस वो इसी खाली पहन के आई लिखते थी, हैं। क्योंकि गाने में रेड शॉर्ट सी ड्रेस आपने नोटिस किया? Yes. पहन के आई थी। Absolutely. She is shining. अगर बात किया जाए आप लोगों से, कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि हम पुराने गानों को उठाकर उनकी मेलोडीज को उठाकर अब हम सभी के बीच में रीअरेंज रिक्रिएट करके ला रहे हैं और ऑडियंस इसे सराहना और प्यार भी दे रही है। एज अ म्यूजिक में आप लोग लेकर आए, अभी हम लोग के लाइक्स सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको जो पुराने गानों की मेलोडीज है उनको उठाकर लाना, नए तरीके से रीअरेंज रिक्रिएट करना और ऑडियंस मार्केट में लेकर आना, आपको क्या लगता है उन गाने की मेलोडीज को ऐसे ही रहने देना चाहिए, नए गाने लाना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो चलना चाहिए? नहीं सर, उनको वही रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी तुलना आप आज के गानों से कहाँ करेंगे। वो जो मदन मोहन ने, नौशाद साहब ने, राजा मंत्री निर्माण साहब ने, अपना आनंद बख्शी जी ने, मधुर सुल्तान कवि ने, कल्याण जी आनंद किशन जी ने, जो लोगों ने काम कर दिया, वो काम क्या आज कोई करेगा सर? उनकी तुलना तो नहीं, वो एक लेजेंडरी चीज है, उनको छेड़ा ना जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा बीट और वो अरेंज करके लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो कंपनी को बोलना चाहिए। कंपनी, हम लोग तो नौकर लोग हैं, अगर कंपनी हमें बोलेगी ये करना तो हम क्या करें? चार रोटी के लिए आ रहा है। बट जो लेजेंड चीज है उससे अगर छुआ ना जाए तो ये सबसे जस्टिफाई अगर नहीं कर पाए तो आई थिंक नहीं करना। हाँ, नहीं करना। वो गाने को, जो पुराना गाना है उसको रिक्रिएट करके जस्टिफाई नहीं कर पाए, आई डोंट थिंक वी शुड टच। ये आप क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट कुछ नया बनता रहना चाहिए। जैसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और होते थे, और खुद से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टा, इंस्टा से ट्विटर, बढ़ता गया ना, आगे आगे वे आया आ गया। तो ठीक है ना, नया नया चीज जब सुनते रहेंगे, न्यू साउंड सुनोगे, तो देन यू विल कीप ऑन अडैप्टिंग इट टू। तो सोनिकली काम करते हैं तभी हम नया कुछ दे सकें। ठीक है, इंस्पिरेशन अगर ले रहे हैं थोड़ी बहुत कहीं से तो वो भी ठीक है, बट या उसको छेड़े ना तो ज्यादा ठीक है, जो लेजेंडरी काम है। तो इफ यू कांट जस्टिफाई इट, डोंट टच इट। आप लोग क्या कहते हैं? सिंगर्स ने कहने का, उनको ज्यादा नॉलेज है, हम तो एक्टर्स हैं। हाँ जी सर, आप हाँ, आई थिंक जितने भी लेजेंड्स हैं जिन्होंने लेजेंडरी गाने बनाए हैं, वो आई थिंक उनकी तुलना कभी किसी से ना करनी चाहिए ना होनी चाहिए। बट आई एम ऑल्सो अ वेरी ऑडियंस पर्सन। अगर आज की यूथ को कोई गाना पसंद आता है जो रिक्रिएट होता है, एंड इफ दे आर एंजॉयिंग इट, व्हाई नॉट? सो आई थिंक एज लॉन्ग एज द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट, मतलब किसी ने अच्छा उसको रेंडिशन दिया है, अच्छा म्यूजिक किया है, अच्छे एड ऑन्स किए हैं, तो एज लॉन्ग एज ऑडियंस एंजॉय करती है, और सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है मुझे लगता है, तो एज लॉन्ग एज एक पर्सन उस गाने को नई तरीके से जब बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड क्योंकि जैसे आज हमने ये गाना किया है, शायद 20 साल बाद कोई लैम्बोर्गिनी को भी रिक्रिएट करेगा। आज इसका जो शबीर भाई ने इतने प्यार से गाने को बनाया है, ऑब्वियसली कभी कल शबीर भाई के साथ ही जुड़ के कोई इसको और बड़ा करेगा, तो व्हाई नॉट? आई थिंक ही विल आल्सो बी प्राउड ऑफ इट। बट अगर इसको कोई गलत वे में छेड़खानी करे तो ही विल आल्सो बी डिसअपॉइंटेड, और ऑडियंस को ऑटोमेटिक, आई थिंक ऑडियंस सबसे समझदार है, आई थिंक ऑडियंस को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनके कान हमसे ज्यादा अच्छे हैं। हम तो एक गाने को बनाते हैं, हमारा बच्चा होता है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑडियंस सिलेक्ट करती है आज का जो जेनजी है, व्हाट दे लाइक, यू नो, if they are liking it, it's there, you're not gone wrong. So I think it's a personal choice with everyone. और मुझे लगता है लेजेंड्स और लेजेंडरी लोग, उनकी कभी किसी से तुलना नहीं हो सकती, दे आर अबव ऑल। बट अगर कोई अच्छा रेंडिशन मिलता है कोई चीज़ का और लोग एंजॉय कर रहे हैं, आई थिंक तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए।
Thank you. Thank you, sir. Thank you.